Hello, my dear students of class 10th. So, how you people are doing? I hope you all are fine. You all are studying well. You all are doing sincere work. Okay. And you're preparing well for your examinations. Today, in this video, we will start with electromagnetism, a very important chapter of class 10th physics. We are doing a crash course. You people know it. We have done a lot of chapters of physics already under this crash course series, and there's a playlist link given in the description box of this video. You can check that out to see the lectures, the previous lectures of this crash course. So today we will start with electromagnetism. Okay, this chapter can be splitted into three parts. Part A is magnetic effect of electric current, which we will cover up today. Yes, we will cover up the entire first part, magnetic effect of electric current, today itself. Under this, we will discuss about Oersted experiment. Okay, this is a very important experiment and इस पर based क्वेश्चन तुम्हें हर साल लगभग मिल जाएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड कैसे आए हैं और किस तरह से आते हैं, we will discuss on Oersted experiment. Then we will discuss about right hand thumb rule. कहाँ यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल को. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लॉक रूल. ओके, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा हम कवर करेंगे आज. The second part, force on current carrying conductor in a magnetic field and its application in DC motor. This we will do it in the upcoming video. वैसे ये पार्ट तुम्हारा रिमूव्ड है सिलेबस से, एप्लीकेशन इन डीसी मोटर. बाकी का जितना भी है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हें पढ़ना है. ठीक है, ये सिलेबस में है. We will be doing it in the upcoming video. And part C, electromagnetic induction, इसमें में आ जाता है हमारा AC DC का कंपैरिजन. ये सब सिलेबस में है. But this AC generator and transformer, this is removed, so we will not do. तो ये चैप्टर हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे. तो आज के हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट, बहुत मजा आने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस वीडियो में. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's start. But you have to get ready with your notebook because you have to also write down those questions we will be doing today. Whatever we will write, you have to note them down. You're doing, I hope you are doing this for all the previous videos that we have done, right? तो चलो, आज सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है Oersted experiment. If you read it carefully, Oersted experiment on the magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट होना चाहिए. मैग्नेट का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. यहां बोला जा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. यस, तो चलो हम समझते हैं ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या. वैसे बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है. स्क्रीन पर अब देखो ध्यान से. ओएरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट किया? एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट किया. एक सर्किट बनाया. He connected a battery in the circuit and a switch in the circuit. A simple circuit. Okay. Acha. Now he took a compass. You know what is a magnetic compass? Which is used to find directions. Okay. जो sailor होते हैं ना, वो समुद्री यात्रा यानी voyage करते टाइम ये compass अपने पास रखते हैं. And this compass has a magnetic needle. The needle always points towards geographic north. You know that, you know this, सबको पता है. The needle will always point. तुम कहीं पे भी ले जाओ, वो अपने needle को हमेशा aligned रखता है geographic north की तरफ. Okay, but if you bring some kind of magnet around it, मान लो कि कोई बार magnet तुम उसके पास लाए. Okay, then you will see that this needle will show some deflection. It will no longer point. This is a bar magnet. Okay, यहाँ पर साउथ है, यहाँ नॉर्थ है मान लेते हैं. दिस बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू दिस मैग्नेट. तो क्या होगा? ये जो नीडल है, दिस विल नो लॉन्गर पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. नाउ इट विल जस्ट पॉइंट टुवर्ड्स एनी अदर डायरेक्शन. ओके, क्योंकि इस पर फोर्स लगा. किसका, कौन फोर्स लगाया? ये जो बार मैग्नेट मैंने लाया, दैट बार मैग्नेट अप्लाइज सम फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं
रोटेशनल टॉर्क, क्योंकि ये जो नीडल है ये रोटेट कर गया, है ना, पहले जिस जगह पॉइंट कर रहा था अभी वहां से रोटेट कर गया, तो दिस नीडल एक्सपीरियंस्ड अ टॉर्क, रोटेशनल फोर्स, एंड इट अलाइंड इटसेल्फ इन सम अदर डायरेक्शन। और वो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा? along the direction of the resultant magnetic field now। तो इस मैग्नेट के वजह से, बार मैग्नेट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस पर इन्फ्लुएंस किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हुआ इस नीडल पर, and this needle now pointed towards a resultant magnetic field। what are the magnetic fields which are acting on this needle? एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों मिलके इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगाया उसी के अनुसार वो अपना डिफ्लेक्शन हो गया। तो बेसिक चीज क्या है? सिंपल है कि नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, द नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ if no bar magnet is brought close to it। The moment a bar magnet is brought close to this magnetic needle, this needle will show deflection। This is the word which you have to use several times in this chapter। deflection का मतलब नीडल अपने डायरेक्शन से कहीं और पॉइंट करने लगा, पहले नॉर्थ की तरफ ही कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। तो ये कब ऐसा हुआ? whenever we brought a magnet in the vicinity of a coil, this in the not coil, sorry, when in the vicinity of this compass, the compass needle will show deflection, otherwise it will not show। okay, अब ये तो हम सब जानते हैं, ये बात हमने सब कोई किया भी होगा कई बार, ठीक है, सिंपल है। तो ओयरस्टेड ने एक वैसे कॉम्पस लाया और इस सर्किट के पास लाया, तो जो कॉम्पस है उसका नीडल ज्योग्राफिक मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो इसका जो नीडल है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो, है ना, नॉर्थ की तरफ भी करना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है, नॉर्थ की तरफ ही करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया गया, दिस स्विच इज मेड ऑन, दैट मीन्स व्हाट? नाउ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। दिस मीन्स दैट स्विच इज क्लोज्ड। ऑन का मतलब क्या? स्विच इज क्लोज्ड। द मोमेंट द सर्किट इज क्लोज्ड, द स्विच इज क्लोज्ड, करंट विल फ्लो इन द सर्किट, isn't it? एंड जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, ओयरस्टेड ने देखा दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। ये नीडल नॉर्थ की तरफ अब पॉइंट नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्शन हो गया। और जैसे ये स्विच को वापस से ऑफ किया गया ना, द नीडल रिस्टोर्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो फिर से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगा। ओयरस्टेड का होश उड़ गया इसको देखकर। जैसे स्विच ऑन हुआ, द नीडल डिफ्लेक्टेड, द नीडल गॉट सफर्ड डिफ्लेक्शन। जैसे करंट ऑफ किया गया, स्विच ऑफ किया गया, द नीडल केम बैक टू इट्स ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन, मींस नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगा। होश उड़ गया ओयरस्टेड का, क्योंकि ये नीडल तभी डिफ्लेक्ट करता है जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब बार मैग्नेट मैंने लाया था पास में, तब डिफ्लेक्शन हुआ था, इजंट इट? क्योंकि बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के ऊपर इफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस कराया। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट produced a rotational force on the compass and therefore it got deflection। but here there is no magnet, but of course if it is showing deflection there must be some magnetic field produced। but who is producing the magnetic field? there is no magnet, magnet तो है नहीं। जैसे स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसीलिए डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं रहा, इसलिए वापस से नीडल अपने इनिशियल पोजीशन नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगा। तो स्विच ऑन करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है चिल्ड्रन? तुम लोग देख रहे हो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट? जी नहीं, यहां कोई मैग्नेट है ही नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट इस कॉम्पस के विसिनिटी में कोई मैग्नेट है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है चिल्ड्रन? करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और बेसिकली बोले तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, उस वो करंट सिर्फ कंडक्टर नहीं, जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस कंडक्टर में, तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बात मैंने अभी बताया, ये मेन कंक्लूजन है ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट का, कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई अगर तुमसे पूछे कि ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट का इन्फेरेंस क्या है, इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन,
कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मतलब समझ रहे हो? क्या रिजल्ट है? वेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने अपना एक्सपेरिमेंट करके किस बात को सामने रखा, क्या आउटकम है, उसको बोलते हैं इन्फेरेंस। क्या आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का? आउटकम यही है कि हमें पता चला कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये डिफ्लेक्शन होगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम कॉम्पस को लेके जाएंगे, लेकिन करंट नहीं है तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ओनली अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस, दिस नीडल experiences a torque, rotational force yani torque, and due to which it aligns itself along the direction of the magnetic field at that point. Alright, तो देखो यहां पर अब हम ओएस्टर एक्सपेरिमेंट का जो यहां बुक में जो है क्या लिखा हुआ है, पहले तो इन्फेरेंस को देखो। इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। क्या इन्फेरेंस है? अ करंट और अ मूविंग चार्ज। अरे मूविंग चार्ज का मतलब ही तो करंट है। करंट का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज फ्लो करता है मतलब करंट, तो करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यही तो मैंने बोला, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसलिए मैंने हेडिंग में अभी लिखा, बताया था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बात आता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकते हैं। इफ आई प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग करंट, मतलब कि अगर इफ आई कनेक्ट अ बैटरी विथ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स मोर करंट विल फ्लो इन द सर्किट, एज अ रिजल्ट दिस डिफ्लेक्शन विल बी मोर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले तो इसको समझो, देखो फिगर को थोड़ा क्लीन करता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, इस चैप्टर में बहुत पेशेंस है ना। जल्दबाजी में सर कंप्लीट कीजिए पूरा चैप्टर एक वीडियो में, नहीं हो सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता। मैं उस तरह से इलेबोरेटली अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ये क्रैश कोर्स है, मैं जितना इसको समराइज्ड वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा समराइज्ड भी होगा कि पूरा चैप्टर तुम्हें कंप्लीट हो जाएगा। इसे शॉर्टकट उछल कूद करके मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि इसको स्किप कर दिया, उसको कर दिया और बोला कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, वैसे नहीं करूंगा। लेंदी होगा, पेशेंस के साथ देखोगे तो तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे से कंप्लीट होगा। वी विल नॉट डू द एंटायर चैप्टर इन वन शॉट। ओके, देख अगर ऐसा करना होता ना तो मैं कर देता बहुत सारे चैप्टर्स को, और उसमें मैं बहुत सारी चीजों को स्किप करते भी करता, नहीं मैं ऐसे नहीं करता। ऑलराइट, तो यहां ध्यान से देखो क्या है। अगर मैंने यहाँ 2 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट फ्लो किया, दैट करंट प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन। मान लेते हैं कि कुछ इस इतना एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ नीडल में। ओरिजिनल था, इधर पॉइंट करना चाहिए था नॉर्थ की तरफ, लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ। तो देखो यू कैन सी द एंगल नाउ, दिस एंगल, ये जो एंगल यहां बन रहा है, इतना एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन मैं अभी 2 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट का यहां बैटरी लगा दिया, 6 वोल्ट का, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आई हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो देखा क्या कि डिफ्लेक्शन इस बार ज्यादा हुआ, देखो इतना एंगल हो गया, डिफ्लेक्शन इंक्रीज्ड। अभी इतना एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ नीडल। तो नीडल में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा जब करंट इन द सर्किट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि करंट को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज इफ द करंट इज इंक्रीज। करंट ही ना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इफ करंट को इंक्रीज कर देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। इसी वजह से डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहां लिखा हुआ है वही बात, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब जो आगे की बात लिखी हुई है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। क्या लिखा हुआ है? इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस पॉइंट वी विल डिस्कस इन सम टाइम। अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस में तुम्हें बताऊंगा कि अलग अलग तरीके से मैग्नेट को रखा गया, मैग्नेटिक कॉम्पस को, और अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हुआ। पहले उन ऑब्जर्वेशंस को समझते हैं एंड देन वी विल कम टू दिस पॉइंट दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान से स्क्रीन पर देखो, वी विल डिस्कस अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस। ओके, यू सी
एक पहले तो मैं सिंपल एक तार को कंसिडर करता हूं। एक तार है, आई एम नॉट ड्रॉइंग द सेल और बैटरी, जस्ट एक सिंपल सा तार है। ऑब्वियसली यहां पर तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तभी इस तार में करंट फ्लो करेगा। बैटरी से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो इस तार में फ्लो क्यों करेगा? बट टू कीप द डायग्राम सिंपल, आई एम नॉट ड्रॉइंग द बैटरी। ये मत सोचना कि यहां पर बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया, बैटरी है, सब है। बैटरी नहीं रहेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? तो आई हैव जस्ट शोन अ पार्ट ऑफ द सर्किट ए बी, I have not drawn the entire circuit, but there is a battery connected to this wire which I have not just shown, but it is there. ठीक है? तो करंट फ्लो कर रहा है A to B, करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं A to B। यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा इस तार के नीचे। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, अभी करंट नहीं फ्लो कर रहा है A to B, जब करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है A to B या B to A, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, द नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है? जो मैं अभी बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द नीडल, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नो डाउट। नाउ let us say current starts to flow from A to B. Obviously we need a battery which I have not shown in the figure. The current is now flowing from A to B. Now this needle will show some deflection. Now the thing is, in which direction will it deflect? ये तो समझ गए कि डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन तो होगा। ये नीडल अभी नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट नहीं करेगा। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तब तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन अभी ये नीडल कुछ ऐसे हो जाएगा या कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन होगा। बट इन विच डायरेक्शन विल इट डिफ्लेक्ट, इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर सेमेस्टर 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है चिल्ड्रन। यहां देखो क्वेश्चन, अ कंडक्टर ए बी, देखो ए बी कंडक्टर है, इज केप्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग रखा हुआ है। नॉर्थ साउथ मतलब इसी डायरेक्शन में है। अबव अ मैग्नेटिक नीडल, देखो नीचे एक मैग्नेटिक नीडल है, मतलब ये कंडक्टर अबव अ मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है। उसके बाद एज शोन बिलो, व्हेन द की के इज क्लोज्ड, मतलब इस की को जब हम क्लोज कर रहे हैं, मतलब स्विच ऑन कर रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शन है? द नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, द नीडल विल टर्न इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स साउथ, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्ट के तरफ डिफ्लेक्शन होगा, वेस्ट के तरफ या साउथ के तरफ पूरा मुड़ जाएगा, या इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पर क्वेश्चन पूछेगा। बट एक चीज तुम्हारे सिलेबस में है कि जो भी कंडक्टर के नीचे या ऊपर कॉम्पस रहेगा, दैट कंडक्टर विल ऑलवेज बी केप्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। यही तुम्हारे सिलेबस में। ऐसा नहीं पूछेगा द कंडक्टर इज लाइक दिस एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लाइक दिस। कंडक्टर मान लो ए बी ऐसा है और नॉर्थ साउथ ऐसा है, तो कंडक्टर और नॉर्थ साउथ परपेंडिकुलर ऐसा नहीं है सिलेबस में। तो इसलिए जितना सिलेबस में हम है उतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेगा इस तरह का, उसमें यही रहेगा जिस कंडक्टर का हमें पूछ रहा है करंट, या इसका मतलब द मैग्नेटिक कॉम्पस जिस कंडक्टर के नीचे या ऊपर रखा हुआ है, वो कंडक्टर नॉर्थ साउथ के अलोंग ही रखा हुआ होगा। ये सिलेबस में। Now look at the options. You will see that one of the option is तो completely wrong. वो तुम लोग खुद बोल सकते हो कि जब की को हमने क्लोज किया तो कभी भी ये तो नहीं हो सकता कि द नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा इट विल डिफ्लेक्ट। यही तो ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, तुम लोग सब लोग जानते हो। अब सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हाँ द नीडल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इज रॉन्ग। लेकिन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए अभी हम इस फिगर में वापस चलते हैं। ये देखो सेम टाइप ऑफ फिगर है। ए बी एक तार है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, एंड द नीडल इज केप्ट बिलो द वायर। मैं इस नीडल को अबव द वायर रखूंगा तो भी बताऊंगा कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द नीडल इज केप्ट बिलो द वायर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन? इसके लिए तुम्हें एक इमेजिन करना है, एक पर्सन जो कि इस तार के ऊपर स्विम कर रहा है।
तार के ऊपर स्विम कर रहा है. नाउ द हेड ऑफ द पर्सन शुड बी टूवर्ड्स दैट पॉइंट in which the current is going to. The legs of the person should be towards that point from where the current is coming. Hello, इस इंसान का सिर किधर होगा? उस पॉइंट के तरफ जहां करंट जा रहा है, पर जहां से करंट आ रहा है वहां उसके पैर होगा. मतलब करंट ए से बी जा रहा है तो बी के तरफ जा रहा है, तो बी के तरफ इसका हेड होगा. मैंने हेड बना दिया, और इसके जो लेग्स हैं वो ए के तरफ है. अब मैं हाथ भी बना दिया ऐसे, देखो सिंपल ऐसे हाथ बना. अब ये इंसान ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है? अगर कॉम्पस नीचे है, इफ द कॉम्पस नीडल इज केप्ट बिलो द वायर, बिलो द कंडक्टर ए बी, दिस पर्सन विल बी लुकिंग नीचे. तो इमेजिन करो कि ये इंसान नीचे देख रहा है, इसके सिर है, नाक है, मुंह है, ही इज लुकिंग नीचे. समझ रहे हो? आई कांट ड्रॉ वेल, तुम लोग तो देख जानते हो कि मैं कितना अच्छा ड्रॉ करता हूं. तो देखो ये नीचे देख रहा है, इमेजिन करो. तो नाउ यू टेल मी वेदर दिस हैंड नंबर 1 और हैंड नंबर 2 विच इज हिज लेफ्ट हैंड. तुम खुद इमेजिन करो, ऐसे नीचे करके ऐसे इस इंसान की तरह लेटने की कोशिश करो. विजुअलाइज इट. You have to visualize. Unless and until you visualize things, you can't do these questions, because ये पूरा चैप्टर विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है. तो ये हाथ 1 या हाथ नंबर 2 कौन सा इसका लेफ्ट हैंड है? क्योंकि लेफ्ट हैंड ही हमें यहाँ का डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बताता है. इस रूल, जो रूल हम यूज कर रहे हैं, इस रूल का नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल. इस रूल का स्टेटमेंट एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, इट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछता है. इसलिए ये रूल को नाम जानना जरूरी नहीं है कि रूल का नाम क्या है. वैसे तो मैंने बता दिया रूल का नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, लेकिन रूल का एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? नीचे देखोगे तो हैंड नंबर 1 विल बी इट्स लेफ्ट हैंड, इज इट नॉट? हैंड नंबर 2 इज इज राइट हैंड. हालांकि अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो हैंड नंबर 2 उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो नीचे देख रहा है या ऊपर देख रहा है, उसका सही तरीके से सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है. तो यहां ये नीचे देख रहा है क्योंकि द नीडल इज केप्ट नीचे, बिलो दी वायर. अगर ये नीडल ऊपर होता तो ये ऊपर की तरफ देखता. वो क्वेश्चन भी हम करेंगे. तो नाउ दिस नीडल इज केप्ट बिलो दी वायर, सो ही इज लुकिंग नीचे एंड हिज लेफ्ट हैंड इज हैंड नंबर 1. तो लेफ्ट ऊपर है ना, इस वायर के ऊपर है. और लेफ्ट मतलब ऊपर कौन सा है? वेस्ट है, वेस्ट, वेस्ट. तो लेफ्ट हैंड के तरफ डिफ्लेक्शन होगा, यानी क्या है ऊपर में? लेफ्ट हैंड. और ऊपर इधर क्या है? वेस्ट है. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नीडल विल डिफ्लेक्ट, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट. पता कर लिया ना, कोई डाउट नहीं. अब सिंपल सा मैं नेक्स्ट केस ड्रॉ करता हूं. अभी मैं कुछ और बहुत सारे केसेस ड्रॉ करूंगा, अलग अलग केस. अभी हम क्या करते हैं ना, नीडल को उसी जगह पे रखते हैं जहां पहले रखा था. अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है from A to B or B to A, and there's no current in the wire. So the needle will point towards geographic north. होना भी चाहिए, because no current is flowing in the wire. So no magnetic field is produced around this compass due to this wire, due to this current. And hence it will point towards geographic north. तो देखो ये इसका डायरेक्शन और नॉर्थ का डायरेक्शन सेम है. Now current starts to flow. This time I'm changing the direction of current. This time the current is flowing from B to A. देखो मैंने नीडल में इस तार में डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया. पहले था A to B, अभी B to A कर दिया. I have reversed the direction of current. Now what will be the direction of deflection? I'll use the same rule, Ampere swimming rule. वो इंसान को बनाओ, लेकिन ध्यान दो उसका हेड किधर होगा? Will we do the head in this way only? नहीं, सबसे पहली बात तो है कि उसका हेड किधर होगा, लेग्स किधर होगा. उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि वो ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है. दो बात. सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द हेड एट द करेक्ट साइड एंड लेग्स ऑन द करेक्ट साइड. देन द नेक्स्ट थिंग इज ही लुकिंग अप और इज ही लुकिंग डाउन. तो मैंने बताया हेड उधर होगा जहां करंट जा रहा है, वहां हेड होगा. करंट इज गोइंग टुवर्ड्स ए, दैट मींस हिज हेड विल बी टुवर्ड्स ए, लेग्स टुवर्ड्स बी. हाथ बना दिया. कौन सा हाथ लेफ्ट, कौन सा हाथ राइट है? अब हमें पता करना है कि वो नीचे देख रहा है ऊपर. आई हैव सेड इफ द कंपास इज केप्ट बिलो द वायर, ही इज लुकिंग नीचे, तो ये नीचे ही देख रहा है.
ही इज लुकिंग नीचे ओनली, नीचे देख रहे हैं, इसकी दृष्टि नीचे। नाउ यू इमेजिन योरसेल्फ स्लीपिंग लाइक दिस, अपना चेहरा नीचे, एंड यू आर डूइंग, यू आर स्ट्रेचिंग योर बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड लाइक दिस, एंड यू आर जस्ट लाइंग डाउन। इमेजिन, तो तुम्हारा ये 1 है, ये 2 है, तुम्हारा कौन सा हाथ लेफ्ट हैंड होगा? बोलो, सब लोग बोलो, इमेजिन करो। ऑब्वियसली हैंड नंबर 2, हैंड नंबर 2 इज लेफ्ट हैंड। मैंने बता दिया कि लेफ्ट हैंड ही हमेशा आंसर देता है। तो लेफ्ट हैंड नीचे है, इस बार लेफ्ट हैंड नीचे, उस बार ऊपर था, इस बार लेफ्ट हैंड नीचे है। नीचे मतलब ईस्ट, ईस्ट। तो इस बार क्या हो गया? द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। जैसे ही मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, बाकी सब सेम था, कॉम्पस वही था, तार वही है, कुछ भी डायरेक्शन वगैरह, कार्डिनल डायरेक्शंस जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही सब सेम है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। इसीलिए नीडल अपना डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट कर लिया। पहले वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी ईस्ट की तरफ हो रहा है। This is the thing written over here, that the direction, its direction मतलब the direction of magnetic field depends on the direction of current. करंट का डायरेक्शन जैसे ही हम रिवर्स कर देंगे, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल आल्सो रिवर्स, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। ये बात यहां लिखा हुआ है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अभी हमने समझा, हर एक चीज में समझाऊंगा। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर, जैसे हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कॉम्पास रिवर्सेस। पहले वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था, अभी ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्सेस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? सिंपल है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉम्पास नीडल को ऊपर रखेंगे तो क्या होगा भाई साहब। यहां पर वही तार है ए बी, ये नीडल है, इस बार कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ है। जब कोई करंट नहीं है कंडक्टर में, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट मैंने बना दिया। द नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, होना भी चाहिए। नाउ लेट अस से द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, सो वी विल ड्रॉ द मैन नाउ। मैन का हेड किधर होगा? टुवर्ड्स बी। पैर किधर होगा? ए के तरफ। ठीक है, जहां पे करंट जा रहा है वहां उस डायरेक्शन में हेड, जहां जहां से करंट आ रहा है वहां से वहां पर लेग्स, हाथ बना दो। लेकिन अब ये इंसान ऊपर देख रहा है बिकॉज द कॉम्पास नीडल इज ऑन द वायर। अब तुम इमेजिन करो अपने आप को ऐसे लेटे हुए हो बिंदास इस इंसान की तरफ, ओके, ऊपर देख रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से है ये लेटा हुआ है। देखो ना कितना गंदा मैं ड्रॉ करता हूं, इस तरह से लेटा हुआ है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, लेटा हुआ है, ही इज लुकिंग ऊपर। तुम भी ऐसे लेटे हुए रहो, दिस इज हिज हैंड नंबर 1, दिस इज हैंड नंबर 2, 1 2, ऊपर देख रहा है ऊपर। कौन सा उसका लेफ्ट हैंड है? हैंड नंबर 2 इज हिज लेफ्ट हैंड, दैट मीन्स ईस्ट। दैट मीन्स द नीडल will deflect towards east। और तुम लोग अभी बहुत इजीली बता सकते हो कि जैसे करंट का डायरेक्शन को हम बी टू ए कर देंगे, बाकी सब चीज सेम रखेंगे, नीडल भी ऐसे रहे, तो ऑब्वियसली तुम खुद करके देखो, दिस मैन्स हेड विल बी हियर, दिस टाइम लेग्स विल बी हियर, और हाथ बना दो। तो इस बार भी वो ऊपर ही देख रहा है क्योंकि नीडल ऊपर है, तो इस बार उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो इधर वाला होगा, ऊपर वाला, मतलब वेस्ट की तरफ। तो नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज एज सिंपल एज दिस। मैंने जो बातों को ध्यान में रखने के लिए बोला है वो ध्यान में रखना कि इंसान का हेड होगा जहां करंट जा रहा है, पैर होगा जहां से करंट आ रहा है। अब सेकंड बात का ध्यान रखना है, नीडल अगर ऊपर में है तो ही इज लुकिंग ऊपर, नीडल नीचे है तो ही इज लुकिंग नीचे, और उसका लेफ्ट हैंड जाए दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात। नाउ टू डू दिस क्वेश्चन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें करंट का डायरेक्शन पता करना है। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, मींस व्हेन द की इज क्लोज्ड, will the current flow in this direction? No, because current does not flow from negative to positive। तो सबसे पहले तो ये क्लास 8 का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टर्मिनल्स दिया हुआ है ना, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है
और नेगेटिव की तरफ आता है। ये सबसे पहली बात है। तो तुम्हें अब ए बी को बस देखना है। ए बी में करंट ए से बी जा रहा है, यहां इंसान बनाओ, उसके हाथ पैर बना दो, और ये नीचे की तरफ देख रहा है बिकॉज द नीडल इज बिलो द वायर। देखो यहां लिखा हुआ है अबव मैग्नेटिक नीडल। अबव का मतलब द कंडक्टर ए बी इज केप्ट अबव द मैग्नेटिक नीडल। नीडल इज केप्ट बिलो। तुम्हें नीडल का देखना है, नीडल कहां है, नीडल इज नीचे। ये अबव वर्ड से कंफ्यूज मत करना। द नीडल इज बिलो द कंडक्टर, तो ही इज लुकिंग नीचे। नीचे होगा तो मैंने अभी बताया, ऐसे इमेजिन करो, लेफ्ट हैंड इज दिस हैंड, मींस वेस्ट। तो आंसर क्या होगा, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। इसका आंसर चेंज हो जाएगा सिर्फ इस करंट का डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें। तुम इस बैटरी को यहां पे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव कर दो, तो करंट का डायरेक्शन फिर उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और उस समय हमारा आंसर हो जाएगा द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। बहुत सिंपल है। आई होप ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो तुम कर सकते हो। दिस इज एन एक्चुअल आईसीएसई क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर सेमेस्टर 2, ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, द अबव ऑब्जर्वेशंस, इतने सारे जो मैंने अभी ऑब्जर्वेशंस बताए, what do they tell you? They tell us, they suggest us that a current carrying conductor produces a magnetic field around it. अरे भाई ये कितना बार ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो दिमाग में घुस गया ना, current carrying conductor produces a magnetic field. This is what Oersted experiment concludes. Oersted experiment says. अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है, why there is a deflection in the magnetic needle. यहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि यहां पर ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है। पहले तो पूछता है व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ऐसा पूछता है। तुम लिखना विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, ऐसा पूछता है कि व्हेन द की के इज क्लोज्ड व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तुम सिंपल लिखना द नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। अगर वो डायरेक्शन नहीं पूछा है तो तुम्हें डायरेक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखना एग्जाम में, द नीडल विल शो डिफ्लेक्शन, बस। डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट नहीं बताना है। ओके अगर वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इट विल डिफ्लेक्ट तभी बताना, अदरवाइज सिंपल लिखना इट विल शो डिफ्लेक्शन। सेकंड क्वेश्चन पूछता है गिव अ रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, मतलब वहां डिफ्लेक्शन क्यों होगा। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों होगा इसका आंसर है यहां से, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कॉम्पस एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, मतलब फोर्स, in this magnetic field, so it deflects to align itself in the direction of magnetic field at that point, जो मैंने अभी भी बताया। this is the answer of this कि डिफ्लेक्शन क्यों होता है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट in the wire the direction of deflection in the magnetic needle of the compass reverses because the direction of magnetic field reverses। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इतना क्वेश्चन इनसे पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक चीज है कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट, ये बात भी मैंने अभी भी डिस्कस किया था, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, मोर करंट विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीजेस, which implies what, implies that the strength of magnetic field around the wire increases। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई है, तो देख लो ये पूरा कितना इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्वेश्चन भी किया। इसके बाद क्या आता है चिल्ड्रन, इसके बाद आता है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। इसे स्ट्रेट कंडक्टर भी बोलते हैं। एक स्ट्रेट वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यहां लिखा हुआ है करंट इन अ स्ट्रेट वायर, मतलब कि सिर्फ एक तार है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट कैन नेवर प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड। ओयरस्टेड ने क्लियर कर दिया है कि ओनली अ करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली अ वायर विल नॉट, एनी वायर ऐसा ले लिया तार उठा के, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इस वायर में जब तक करंट नहीं है वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैंने अगर एक स्ट्रेट वायर लिया है तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इफ इट कंटेन्स करंट इन इट। तो यहां पर एक तार ले लो सीधा स्ट्रेट, इसको ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहां पे शो नहीं किया गया है लेकिन करना तो पड़ेगा। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, यू सी आई करंट, इसका नाम दे देते हैं ए बी, पॉइंट ए बी। करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, राइट।
वी हैव ड्रॉन इट, मैं बी ए टू बी का भी बताऊंगा अभी। तो बी टू ए करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, लेकिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बना, स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओयरस्टेड ने तो बोला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे वो हमें ड्रॉ करना है। to draw the magnetic field lines, to draw the magnetic field lines around this straight current carrying wire, we need to follow a rule. What is that rule? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Right hand का यूज करना है क्योंकि right hand thumb rule है। Right hand thumb rule का यूज कहां करते हैं? To draw the magnetic field lines कहां पर? Around a current carrying straight wire या straight conductor, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत सिंपल है। अपना राइट हैंड उठाओ और थंब को, अपने थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करो जिधर करंट जा रहा है। सो इफ द करंट इज गोइंग ऊपर, as it is in this case, current is going ऊपर, so your thumb will also point ऊपर, and then you close your rest of the fingers, you encircle the rest of the fingers and close your fist without closing the thumb, obviously thumb ऊपर रहेगा, but you encircle rest of the fingers। तो जिस डायरेक्शन में तुमने एनसर्कल किया, ऐसे एनसर्कल किया, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तार के अराउंड। तो है, यू सी हाउ माय पेन इज मूविंग और हाउ आई एम एनोटेटिंग ऑन द स्क्रीन। उंगलियां तुमने कैसे एनसर्कल किया? ऐसे, ऐसे, isn't it? So you see, you have to draw this kind of circle around it. This circle shows the magnetic field lines, but also with the direction, ऐसे एरो और यहां से ऐसे, ऐसे 3-4 लाइन बना देना एग्जाम में। ओके, एक लाइन, 2 लाइन, 3, सुंदर से होना चाहिए, एरो बनाना जरूरी है, 4, 3 काफी है, 3 काफी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। You see here in the book, this is the diagram. They have only drawn 1 line. वैसे ये बहुत सारे लाइंस होते हैं। तुम दो एग्जाम में कभी पूछेगा ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो तुम ना इस तरह से बना देना, 3 लाइन बनाना, दैट इज एनफ। ऑब्वियसली सेंटर में होना चाहिए, इन बिकॉज दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर ध्यान दो तो ये सारे सर्कल्स का सेंटर ये है और इसी सेंटर से ये कंडक्टर पास हो रहा है। अच्छा, अब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, नॉट ऊपर जा रहा है, करंट अब ए टू बी आ रहा है, तो वही काम करना है। अपने राइट हैंड उठाओ, थंब को नीचे पॉइंट करो, थंब विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप उंगलियों को एनसर्कल करो, तो नाउ यू आर क्लोजिंग द फिंगर्स इन दिस वे, तो दिस इज द डायरेक्शन। एक और लाइन बना सकते हो, अच्छे से बनाना, अच्छे सुंदर लगना चाहिए। तो दिस इज हाउ द सर्कल्स विल बी देयर। यू सी द एरोज गिवन, ये जब करंट ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर है, एंड द डायरेक्शन इज लाइक दिस। I hope you have gotten it. Okay, so this is what right hand thumb rule says. This rule helps us to draw the magnetic field lines, especially the direction of magnetic field lines. क्योंकि डायरेक्शन कैसे होगा वो जरूरी है, अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो रूल का स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। What is the state? You have to mug it up. If we hold the current carrying conductor in our right hand, important, कौन सा हाथ? Right hand, such that the thumb points in the direction of flow of current, then the fingers encircle the wire in the direction of magnetic field lines. Rest of the fingers will encircle the wire in the direction of magnetic field lines. यही तो मैंने बताया, ये लिखा हुआ, याद करना पड़ेगा एकदम, यहाँ पर रट्टू तोता बनना पड़ेगा। जो रूल्स है, यू कैन नॉट इग्नोर द स्टेटमेंट्स ऑफ द रूल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल बताया था, एम्पियर स्विमिंग रूल, ये जो इंसान स्विम कर रहा है, मैंने बता दिया है कि ये तुम्हारे एग्जाम में इसका स्टेटमेंट नहीं बोलेगा। तो एम्पियर स्विमिंग रूल का एग्जाम में कोई स्टेटमेंट नहीं पूछता है, इसका सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। बट
ये जो रूल अभी अभी हमने पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल, इसका स्टेटमेंट सिलेबस में है और तुम्हें ये याद करना है, इसका नाम वगैरह, ये कहाँ यूज करते हैं, क्या नाम है रूल का। अगर तुम एग्जाम में सिर्फ लिखोगे थंब रूल, तुम्हें 0 मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल, अच्छा कई बच्चे तो लिखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कोई रूल। हाँ एक और रूल है, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो अलग रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो हम आगे पढ़ेंगे आगे के इसी चैप्टर में, बट इन अदर वीडियोस, इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस Fleming's right hand rule. That is a different rule, and right hand thumb rule is a different rule. So don't confuse between the two. Okay, इसका नाम right hand thumb rule है बस। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप, यानी सर्कुलर कॉइल में जो करंट होगा। ये बिल्कुल सेम है, अभी अभी जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा वैसा ही है। यू सी देयर इज अ सर्कुलर लूप, this part XPA, only consider XPA, and then you will consider this part YQA। दो पार्ट है, तो मैं पहले सिर्फ XPA को कंसिडर कर रहा हूं। ये है तुम्हारा XPA, समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ इस हाफ की बात कर रहा हूं, XPA की, इस सर्कुलर कॉइल का या फिर इस लूप का एक आधा हिस्सा। तो इसको हम एक स्ट्रेट कंडक्टर माने, अगर वैसे तो स्ट्रेट नहीं कर्व्ड है, लेकिन अगर माने कि स्ट्रेट है, तो इसमें जैसे पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैसा ही पैटर्न इस पी के अराउंड बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, सो करंट विल फ्लो, यू सी लाइक दिस, ऐसे ऊपर जा रहा है। दैट मींस एक्स से ए के तरफ जा रहा है, एक्स से ए के तरफ जा रहा है करंट, राइट। तो x से अगर a की तरफ जा रहा है तो हम करंट ऐसे बनाएंगे, करंट का डायरेक्शन a से x तो नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां से देखो ना, ये फिगर क्लियर कर रहा है कि पॉजिटिव से करंट निकला तो x से a जा रहा है, राइट। तो अगर ये x से a जा रहा है, इस तरह से बना दिया यहां पर, तो अगर इसे हम स्ट्रेट कंडक्टर माने तो इसी तार को तुम स्ट्रेट कंडक्टर मानो, मानो कि ऐसा स्ट्रेट है, ए पी एक्स है, करंट ऊपर जा रहा है, मान सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वैसे ही थंब को ऊपर पॉइंट करो, एनसर्कल करो अपने फिंगर्स, तो यहां पर पॉइंट पी के अराउंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनेंगे, जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा। एंड दैट इज द थिंग ड्रॉन ओवर हियर अराउंड पी, ध्यान से देखो ऐसे बनाया हुआ है पी के अराउंड, जैसे कर एनसर्कल करोगे फिंगर वैसे ही है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना। एंड यू कंसिडर दिस हाफ क्यू ए क्यू वाई, इधर करंट घूमकर नीचे आ रहा है, इधर करंट नीचे की तरफ है, तो थंब नीचे करोगे और वैसे ही फिंगर्स को एनसर्कल करो। इस बार जो फिंगर्स एनसर्कल हो रहे हैं वो ऐसे डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो यू सी हियर द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। तो बात तो वही है, टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ लूप यू हैव यूज्ड नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल। ऑब्वियसली ध्यान से अगर देखो तो ये जो सर्कल्स है, ये जैसे दूर जा रहे हैं इस पॉइंट से, ये फिर कंप्लीट सर्कल्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये इनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है और धीरे धीरे ये पैरेलल बनते जा रहे हैं आपस में। इफ यू सी यहां पर जो लाइन होगा, यहां पर जो लाइन होगा, दीज विल बी मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, नॉट कंप्लीटली पैरेलल बट वेरी मच पैरेलल। तो फिर वो रिंग्स नहीं बनते, वो पैरेलल, क्योंकि बहुत वीक वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा एकदम बीच में। द लाइन इज एक्चुअली थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप, जो सेंट्रल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, जैसे यहां दिख रहा है तुम्हें, दैट विल एक्चुअली बी पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द लूप। ये लूप का जो एक्सिस है, सेंटर पॉइंट है, एक्सिस है, उस एक्सिस से ये ऐसे अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर इनटू द एक्सिस। दिस इज समथिंग व्हिच समटाइम्स कम इन क्वेश्चन, कि जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या वो सर्कल है? नहीं, दैट विल पास थ्रू द एक्सिस ऑफ द लूप। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। अब आता है जो नेक्स्ट रूल है, वो है क्लॉक रूल। और देखो आज क्लॉक रूल पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर का यहां पर।
ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी है। तो क्लॉक रूल पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं पहले क्लॉक रूल। तो समझने से पहले मैं तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसके कैसे हम पैटर्न बना, कैसे इस पर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट क्लॉक रूल तुम्हें पढ़ाने लगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है चिल्ड्रन कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपली a core. This is a core. Basically, generally, to make an electromagnet, we use soft iron as a core. Soft iron is a material. सॉफ्ट आयरन का कोर लेंगे और उसके ऊपर लपेटेंगे क्या, वाइंड करेंगे क्या, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसको कैसे वाइंड करते हैं? इस तरह से वाइंड कर सकते हैं, सामने से उठाया पीछे से गिराया, सामने से उठाया पीछे से गिराया, सामने से उठाया पीछे से गिराया। दिस इज वन वे वी कैन वाइंड। इसको वाइंड करने का दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी बताऊंगा अभी। तो सामने से उठाया पीछे से गिराया एंड पीछे से इसको निकाल उतार दिया। ऐसे सामने से उठाया पीछे से गिराया। नाउ यू कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो पहले मैं मान लेता हूं कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हमने बैटरी कनेक्ट किया, एक स्विच भी लगा दिया, ऑन है अभी। तो करंट विल नाउ फ्लो इन दिस कॉइल। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, तो यहां से करंट फ्लो करेगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पीछे से ये नीचे उतरेगा। Isn't it? You have to visualize. Unless and until you visualize, you'll not be able to do it. This is a current carrying conductor. This wire is a current carrying conductor. What Oersted has told us that current carrying conductor will produce a magnetic field. So this will definitely produce a magnetic field. Now, इसके magnetic field lines draw करना तुम्हारे syllabus में नहीं है। ये तुम देख लेना, तुम्हारे syllabus में नहीं है। Magnetic, मेरा विश्वास करो, magnetic field lines due to a current carrying सोलिनॉइड, इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। ये जो सोलिनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इट। बट इसके द्वारा जो मैग्नेट बना, यस, this current carrying solenoid will behave like a magnet. It will be very similar to a bar magnet, but a lot of differences are there. बार मैग्नेट और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच क्या डिफरेंसेस है वो एग्जाम में पूछता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। लेकिन इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, इसका भी बिल्कुल वैसा होता है। तो एक तरह से सोच सकते हो कि एक मैग्नेट हमें मिलेगा। दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अ मैग्नेट, और उस मैग्नेट का स्पेशल नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लास 9th में भी पढ़ा था तुम लोगों ने। इस तरह से कॉपर वायर को लपेट दो, सॉफ्ट आयरन और करंट फ्लो करा दो, तो वो मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। करंट जैसे ही ऑफ कर दोगे, दिस विल नो लॉन्गर बी अ मैग्नेट, सो दिस इज अ टेम्पररी मैग्नेट। वेल, क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एक मैग्नेट बना है तो इसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। तो क्या ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, या फिर ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा? कौन सा एंड नॉर्थ होगा, कौन सा एंड साउथ होगा? दे आस्क इट to decide the polarity, to decide the polarity in an electromagnet, we will use, अभी जो रूल पढ़ाने वाला, क्लॉक रूल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉक रूल का स्टेटमेंट भी एग्जाम में आता है और इसका एप्लीकेशन भी आता है। अभी अभी हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, इसका भी स्टेटमेंट आता है, एप्लीकेशन भी आता है। एप्लीकेशन मतलब कि ये तुम्हें बोलेगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे अभी अभी हमने ड्रॉ किया, लेकिन सुंदर से बनाना है तुम्हें। इस तरह से सर्कल्स जो बनाओगे, सुंदर सर्कल, 3-4 सर्कल बनाना और एरोज को सही तरीके से यहां पे ड्रॉ करना, सही डायरेक्शन में। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन और स्टेटमेंट। एम्पियर स्विमिंग रूल में स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, सिर्फ एप्लीकेशन पूछेगा। पिछले साल पूछा भी था, इवन वी हैव डिस्कस्ड दैट क्वेश्चन जस्ट नाउ। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लॉक रूल। इसका कैसे यूज करेंगे यहां पर,
कब यूज करेंगे? मैंने बताया टू डिसाइड द पोलैरिटी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। पोलैरिटी मींस कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। इस फेस से अब देखो, तुम इमेजिन करो, समझना पड़ेगा बुद्धि लगा के, सर क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझो। यहां पर अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स से डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। विजुअलाइज करना सीखना होगा, तो मैं तुम्हें विजुअलाइज कराना सिखा रहा हूं। सुनो मेरी बातों को ध्यान से, तो मेरे वीडियो को भी देखना तो मेरी बात को भी सुनना। तुमने तार को जिस तरह से वाइंड किया है, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक पेंसिल है, जैसे मेरे पास ये पेन है। द वायर इज वुंडेड इन द सेम मैनर, ऐसे ऐसे वुंड किया हुआ। ओके, जिस तरह से तुमने यहां वाइंड किया ना फिगर में, वैसे ही सोचो, सामने से गया तार, पीछे से गिरा, सामने से। और उसी तरह से अपने फिंगर को घुमाते घुमाते इमेजिन कर लिया तार को। नाउ करंट का डायरेक्शन, जैसे करंट फ्लो कर रहा है, अब अपने फिंगर्स को वैसे मूव करो। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट कैसे फ्लो, करंट का डायरेक्शन की तरफ उंगली को मूव करो, वाइंडिंग के डायरेक्शन में नहीं। वाइंडिंग का डायरेक्शन नहीं, करंट का डायरेक्शन की तरफ अपने फिंगर्स को मूव करो। तो करंट देखो फिगर में, ऐसे ऊपर चढ़ा और पीछे से नीचे गिरा। करंट पीछे से नीचे गया, फिर सामने से ऊपर उठा। Isn't it? This is how it is drawn. The current सामने से गया, पीछे से नीचे गया, सामने से ऊपर गया, पीछे से नीचे। Now you look from this side. किसी भी एक एंड से देखो, लेकिन उंगलियां वैसे ही घुमाते रहो, उंगलियां का घुमाना चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी एंड से देखो। तो मैं इस एंड से देख रहा हूं, ओके, जिधर मैंने स्क्रीन ऑल्सो हैव ड्रॉन द आई, उस साइड से देखो। अगर तुमने जो मैंने बोला वो सही काम किया, तो तुम्हारा फिंगर्स इस साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। योर कंटिन्यू टू मूव योर फिंगर। वन सेकेंड, कंफ्यूज कर गए? नहीं करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये रूल जो मैं अभी बताने वाला हूं। क्लॉक रूल क्या करना है तुमको, तुम्हें अपने फिंगर्स को घुमाना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। वाइंडिंग किस तरह से किया उस पर डिपेंड नहीं करता, करंट कैसे फ्लो कर रहा है वैसे, जैसे फिगर में दिख रहा है अपने पेंसिल में, वैसे उनकी उंगलियों को घुमाओ। करंट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे करो। करते कर किसी एक एंड से उसको देखो, किसी भी एक एंड से। तो इस एंड से मैं देख रहा हूं तो मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। क्लॉकवाइज, अगर मैं ये इसको पी नाम देता हूं और इस एंड को क्यू देता हूं, तो मैं क्यू से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज नजर आता है। मैंने घुमाना बंद नहीं किया, वैसे ही घुमा रहा हूं। अब मैं इस बस पी से अब देख रहा हूं इसको, अब ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। I have not changed the direction of my movement of my hand. I have just shifted my head. Now I'm looking from P. ये anti-clockwise दिख रहा है. Now I will go and see it from Q. I will not stop my hand. My hand will continue to rotate in the same direction. अब मैं इसको फिर Q से देख रहा हूँ, तो अब ये clockwise दिख रहा है। तो जिस साइड से मुझे clockwise दिखेगा, उस साइड साउथ पोल डेवलप हो रहा है। और जिस फेस से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट का फ्लो, उधर नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। जिस फेस पर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, उधर नॉर्थ पोल डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और साउथ किधर डेवलप होगा? साउथ पोलैरिटी, जिधर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो मैंने अभी भी बताया तुम्हें कि मैं क्यू से देख रहा था तो लग रहा था कि करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां पे साउथ पोल डेवलप होगा, और ऑब्वियसली उधर नॉर्थ पोल डेवलप होगा। क्लॉक रूल यही कहता है। क्लॉक रूल का पढ़ो, यहां क्या लिखा हुआ है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप। ये तो लूप ही था ना, लूप के फेस को देखकर, इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द फेस हैज नॉर्थ पोलैरिटी। मैंने यही बताया, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोलैरिटी। while if the current at that face is in clockwise direction, the face has south polarity। इससे इजी क्या हो सकता है? याद रखने के लिए एक सिंबल है, एस लिखोगे और यहाँ एरो लगा दो, तो ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? क्लॉकवाइज। ये एरो बता रहा है ना क्लॉकवाइज, तो ये एस मतलब साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट। तो जहां क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वहां साउथ पोल है। और एन को ऐसे बनाया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी करंट फ्लो कर रहा है वो नॉर्थ पोल है। ये बस याद रखने का सिंबल है, इससे अलावा ये कुछ, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हें अगर ये याद रहेगा कि क्लॉकवाइज करंट मींस साउथ, एंटी क्लॉकवाइज करंट मींस नॉर्थ पोल, तो ये सब सिंबल का कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं।
फिर हम एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं। मैं क्या करता हूं, ये फिगर को सेम रखता हूं, बिल्कुल सेम सेम फिगर। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं अगर ये मुझे अलाउ करेगा। यहां पर इसी फिगर में मॉडिफिकेशन करता हूं, ठीक है। एक मिनट बच्चा, मैं वाइंडिंग को एज इट इज रखता हूं, सिर्फ पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को मैं चेंज कर दूंगा। देखो पहले मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव कर देता हूं। और वाइंडिंग में कोई चेंज नहीं किया, वाइंडिंग ऐसे ही था। मैंने बताया तुम्हें फिंगर्स को वाइंडिंग के तरह नहीं घुमाना है। वाइंडिंग कैसे की हो वैसे नहीं घुमाना है, मैं फिंगर्स घुमाना है करंट के डायरेक्शन के अलाउंग। तो अभी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हियर, पीछे से इस बार सामने गिरेगा करंट, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। तो पहले जो करंट का डायरेक्शन था ना वो डिफरेंट था, अभी देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। ये एंड पी है, ये एंड क्यू है। कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है कैसे पता करेंगे, क्या पी नॉर्थ पोल है, क्यू नॉर्थ पोल है, क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्लॉक रूल का सबसे पहला तुम्हें यूज करना कौन सा रूल है, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल का सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने फिंगर्स को घुमाओ। वाइंडिंग जिस तरह से किया हुआ है वैसे नहीं, वही बेवकूफी है, वहीं पर चूक हो जाती है। वाइंडिंग जैसे किया हुआ है वैसे फिंगर नहीं घुमाना है। करंट जैसे फ्लो कर रहा है वैसे फिंगर्स घुमाओ। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इधर पीछे से चढ़ा सामने से गिरा। जहां से करंट स्टार्ट हुआ वहां से इमेजिन करो, पीछे से चढ़ा मतलब इसका, सोचो पीछे से करंट चढ़ा सामने से। डोंट सी व्हाट आई एम डूइंग ऑन माय वीडियो, डू व्हाट आई एम सेइंग। तो जस्ट मूव योर फिंगर्स along the direction of current, not along the direction of winding। करंट का एरो को देखो और अपने फिंगर्स को वैसे मूव करो पहले, और उसके बाद एंड क्यू से देखो। क्यू से अगर देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। अगर तुमने सही तरीके से अपनी फिंगर्स को घुमाया है करंट के डायरेक्शन में, तो क्यू साइड से अगर देखोगे तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। एंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन ऑफ द हैंड, जस्ट यू चेंज द लुक, shift your head on this side, and if you see current will now seem to go in clockwise direction from looking at point P। P से देखोगे तो लग रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, P से देखोगे तो। और Q से देखोगे तो लग रहा है कि वही हैंड तुम्हारा वैसे ही घूम रहा है। Q से देखोगे तो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है वहां नॉर्थ पोल है, तो P पर साउथ पोल है, क्योंकि P पर लग रहा है क्लॉकवाइज, Q पर देखने से लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक रूल है। तो क्वेश्चन पूछता है P पर कौन सा पोलैरिटी डेवलप हुआ, लिखोगे साउथ। Q पर कौन सा पोलैरिटी डेवलप हुआ, नॉर्थ। अब वाइंडिंग को हम चेंज करते हैं। ये आई होप यू हैव ड्रॉन बोथ ऑफ द फिगर्स व्हिच आई हैव ड्रॉन जस्ट नाउ। एंड ये दो बेसिकली दो क्वेश्चन हमने किया। अब हम वाइंडिंग को चेंज करते हैं। इस बार वाइंडिंग ही हम अलग तरीके से करते हैं। पिछले बार का वाइंडिंग क्या था, सामने से पीछे गिराया था। इस बार वैसे नहीं, इस बार पीछे से सामने गिरा रहा हूं। पीछे से सामने, समझ में आ रहा है। इधर फिर सामने से वो नीचे गिरा, इधर हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। करंट ऑब्वियसली ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निकलेगा, पीछे से चढ़ा सामने से गिरा। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट इमेजिन, रोटेट योर फिंगर्स along in the direction of current। करंट पीछे से उठा सामने गिरा, isn't it? This is how it is। यहां पे ध्यान से देखो, करंट पीछे से चढ़ा और सामने से करंट नीचे गिरा। तो यू ऑल्सो डू इट, पीछे से चढ़ा सामने से गिरा, पीछे। एंड दिस यू डू इट, कंटिन्यू टू डू इट एंड सी फ्रॉम एंड क्यू। कौन सा क्यू, मतलब ये क्यू है, ए पी, ये हाँ ये पी ये क्यू है, ठीक है। स्क्रीन में देखो क्यू कौन सा। नाउ लुक एट फ्रॉम क्यू। तो क्यू से तुम्हें, अगर तुम सब सारी चीज सही कर रहे हो तो क्यू पर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नॉर्थ पोल है। ऑब्वियसली उसी मोशन को तुम अगर पी से देखोगे तुम्हें साउथ पोलैरिटी मिलेगा, वहां क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। एंड इफ आई जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट सेल को अब जस्ट घुमा के लगा देता हूं,
इसको यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा देखोगे पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। जैसे पिछले अभी एग्जांपल में बताया था, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से देखोगे जहां साउथ था वहां नॉर्थ हो जाएगा, जहां नॉर्थ था वहां साउथ हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पर भी वही होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब कि नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं। कब? जस्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलैरिटी को अगर मुझे स्विच करना है, स्वैप करना है, नॉर्थ साउथ को साउथ नॉर्थ बना देना, जहां साउथ था वहां नॉर्थ बनाना है, जहां नॉर्थ है वहां साउथ बनाना, तो क्या करेंगे, पूरा तार को मत खोलो, वाइंडिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो। यानी बैटरी था उसको बस घुमा के लगा दो, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ये तो एक इंपॉर्टेंट है। क्या हम इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? जी हाँ, we can increase the magnetic strength produced due to this magnet. This is a magnet, right? Electromagnet is a magnet, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, तो मैग्नेट है। तो क्या हम इसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम करके इसे वीकर मैग्नेट बना सकते हैं? जी हाँ। कैसे? दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, इनफैक्ट तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है कि अगर तुम यहां एज अ कोर, इफ यू आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इफ यू आर यूजिंग, then this will be a strong magnet. सॉफ्ट आयरन के जगह अगर तुम यहाँ पेंसिल या वुड या कुछ दूसरी चीज यूज कर रहे हो और ये सेम काम किया, यू विल सी दैट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी वीकर। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तुम्हें कोर, मतलब जिसके ऊपर तुम ये तार को वाइंड करोगे वो कोर होना चाहिए कौन से मटेरियल का? सॉफ्ट आयरन का। ये फर्स्ट चीज है। ओके, अब इसके बाद भी तुम्हें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो क्या करोगे? इंक्रीज करने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा टर्न्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। इफ आई ड्रॉ दिस वन, तो देख रहे हो इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन, ये जो ब्लैक कलर का मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया और अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेकंड वाले में ऑब्वियसली यहां तुम्हें बैटरी वगैरह लगाना पड़ेगा, सेकंड वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ज्यादा टर्न या बहुत ज्यादा, तो ज्यादा टर्न्स मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। एक और तरीके से हम इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं मैग्नेट, क्या कि ये जो बैटरी है ना, इसे ज्यादा करंट फ्लो कराओ। कैसे? तुम हायर पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाओ, ओके, लाइक 6 वोल्ट का पहले लगा रहे थे, तो अभी तुम 12 वोल्ट का लगाओ या 20 वोल्ट का बैटरी लगाओ। दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द करंट, इफ यू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, तो ये पहले भी ऑयस्टर में भी पढ़ा था कि करंट का डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। अभी अभी ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, यहां पे भी वो काम होगा। ये बोर्ड्स में कई बार पूछता है चिल्ड्रन कि वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी भी बताया, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग्स इन द सॉलिनॉइड, टर्न्स बढ़ाकर। दूसरा तरीका बाय इंक्रीजिंग द करंट। एक तीसरा जो मैंने बोला वो है कि सॉफ्ट आयरन एज अ कोर यूज करेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे एज अ थर्ड पॉइंट हमेशा लिखना। अगर कभी ये बोलता है गिव टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग, तो टू वेज मतलब इन्हीं दोनों को लिखना, वो सॉफ्ट आयरन वाला पॉइंट मत लिखना। लेकिन कभी अगर वो वही पॉइंट ही एकमात्र ऑप्शन है, जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछले बार स्पेसिमेन पेपर में, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, वहां पर आंसर ही होगा कि हमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें वो क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज इफ नथिंग इज मेंशन, अगर सिर्फ टू डिफरेंट वेज पूछा है टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, तुम यही सिंपल लिखना, इट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग्स बढ़ा दूंगा तब, और दूसरा तरीका है कि करंट को ही इंक्रीज कर दूंगा सॉलिनॉइड में, ये दूसरा तरीका। Here is a U-shaped electromagnet. देखो सॉफ्ट आयरन है, वाइंडिंग है, तो कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? वैसे तो फिगर में बनाया हुआ है कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, लेकिन अगर मान लो ये लिखा हुआ नहीं है, तुम्हें पूछा कि दिस P इज साउथ पोल और दिस Q इज साउथ पोल, विच लेग, विच आर्म ऑफ दिस U-shaped magnet is साउथ पोल या विच इज नॉर्थ पोल? तो तुम ना पहले तो इस आर्म को कंसिडर करो, किसी एक आर्म को, ये मान लो, ये मेरे पेन को देखो, ये
आर्म पी है और इसमें जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे अपने इन फिंगर्स को मूव करो। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकला रियोस्टैट से होते हुए, तो वो करंट का डायरेक्शन है। करंट कैसे जा रहा है वैसे ही अपने फिंगर्स को मूव करो, ऐसे ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, एक्स से अंदर गया पीछे गया। तो यू हैव टू मूव योर फिंगर्स, यू हैव टू एनसर्कल योर फिंगर्स अराउंड द लेग पी एज द करंट इज फ्लोइंग। इफ यू डू द रॉन्ग वे फिर गलत आंसर आएगा। अब तुम नीचे से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से नहीं, क्योंकि तुम्हें नीचे पोलैरिटी पता चलेगा। नीचे से देखो क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, नीचे से क्लॉकवाइज जा रहा है। यहां से अगर तुम देखोगे नीचे से, यहाँ तुम्हारा आई है, नीचे से देखोगे तो लग रहा है कि क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब है यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा, इसलिए देखो एस लिखा हुआ है। ऑब्वियसली दूसरे साइड में, दूसरे आर्म में करंट का डायरेक्शन जैसे फ्लो कर रहा है वैसे अपने फिंगर्स को मूव करो, बिल्कुल वैसे। और फिर नीचे से देखो तुम्हें लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगा। इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, समझ में? क्लॉक रूल का ही यूज किया यहाँ पर। If I just change the direction of the current by just rotating the battery, then current will flow in the opposite direction. तो फिर क्या होगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। सिंपल सा बात है ना? तो तुम्हें क्लॉक रूल कहाँ यूज करना है समझ में आ गया होगा, क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी अभी बताया, और परमानेंट मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट, क्या डिफरेंसेस है उनके बीच वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, नाइन्थ में भी पढ़े हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ स्टील। इलेक्ट्रोमैग्नेट produces magnetic field as long as current is flowing in the coil. Okay, it is a temporary magnet, isn't it? But permanent magnet produces permanent magnetic field. जब तक करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में तब तक वो मैग्नेट है, अदरवाइज नहीं है मैग्नेट। The magnetic field strength can be changed. Magnetic field strength can be increased or decreased. कैसे इंक्रीज करता है वो भी अभी अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। फोर्थ पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रांग। बहुत हाई करंट फ्लो कराओगे तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। परमानेंट मैग्नेट में हम उतना स्ट्रांग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इज नॉट सो स्ट्रांग। Polarity in permanent magnet cannot be reversed. In electromagnet it can be reversed. जैसे नॉर्थ साउथ को तुम चेंज नहीं कर सकते परमानेंट मैग्नेट में। नॉर्थ को साउथ बना दिया, आज मन कर रहा है साउथ को नॉर्थ बना दिया, यहाँ कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट में। जस्ट करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगा। कई बार पूछता है हाउ कैन यू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? सिंपल आंसर लिखना, ये बैटरी को घुमा देंगे ये सब मत लिखना। क्या लिखेंगे इसका आंसर, कैसे पोलैरिटी रिवर्स करेंगे? सिंपल लिखना, इतना ही लिखना, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। फुल मार्क्स। वो बैटरी को घुमा देंगे, करंट का डायरेक्शन घूम जाएगा, ये सब लिखोगे 0 मिलेगा। हालांकि हम वही करते हैं, बैटरी को ही घुमा देते हैं, बैटरी को जस्ट रोटेट रिवर्स कर दिया। लिखना नहीं है एग्जाम, लिखना क्या है, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड। कैसे डीमैग्नेटाइज करेंगे? स्विच ऑफ कर दो, करंट फ्लो नहीं करेगा, इट इज नो लॉन्गर अ मैग्नेट, डीमैग्नेटाइज हो गया। परमानेंट मैग्नेट को बहुत डिफिकल्ट होता है डीमैग्नेटाइज करना, उसको बहुत हैमरिंग करना होगा, हाई टेम्परेचर में ले जाना होगा, बहुत सारा इस पर मेहनत है, देन ओनली इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। सो इट इज नॉट इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं, तुम्हारे लिए अब हलवा है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। द फिगर 10.1 it shows a spiral coil wound on a hollow cardboard AB। एक hollow cardboard है, देखो सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है, hollow cardboard है, ठीक है। AB, a magnetic compass is placed close to it। कॉम्पस को इसके पास रखा गया। करंट इन द स्विच इज ऑन, यहां पर की है यानी स्विच है। करंट इज स्विच्ड ऑन बाय क्लोजिंग द की को ऑन किया गया। क्लोजिंग द की मतलब स्विचिंग ऑन द की। व्हाट विल बी द पोलैरिटी एट एंड्स ए एंड बी? तो तुम लोग तो अभी बता दोगे, जैसे स्विच ऑन हुआ करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्या ऐसे पीछे से चढ़ेगा, सामने से गिरेगा? जी नहीं, पोलैरिटी देखो, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है। वहीं गलती कर दिया, वहीं चूक हो गई तो बड़ा अंडा। करंट विल फ्लो फ्रॉम आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से ऊपर जाएगा,
पीछे से गिरेगा, ऊपर जाएगा, पीछे से गिरेगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, पीछे गिरेगा, और यहां से पीछे गिरेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कैन यू विजुअलाइज इट? करंट का डायरेक्शन पता चल गया, अब फिंगर्स को वैसे ही घुमाना है, क्लॉक रूल। ऐसे करंट सामने से पीछे। एंड बी से देखो कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। करो, जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे बनेगा? सेम है, फिंगर्स को रोटेट करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हाउ यू हैव वुंडेड इट। कैसे वाइंडिंग किया उससे कोई मतलब नहीं। करंट का डायरेक्शन कैसा है, एरोज का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज लग रहा है मुझे, तो मेरा लग रहा है बिल्कुल क्लॉकवाइज है। बी से देखूंगा तो क्लॉकवाइज लग रहा है। क्लॉकवाइज मतलब बी पर कौन सा पोलैरिटी डेवलप हुआ? साउथ पोल। ए पर नॉर्थ पोल। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द पोलैरिटी एट द एंड्स ए एंड बी? देखेंगे एट एंड ए नॉर्थ polarity is developed। अंडरलाइन कर देना, नॉर्थ पोलैरिटी। एट एंड बी साउथ पोलैरिटी इज डेवलप्ड। हो गया पार्ट ए। पार्ट बी बोल रहा है हाउ विल द कॉम्पस नीडल बी, हाउ विल द कॉम्पस नीडल बी अफेक्टेड, गिव रीजन। देखो अब कॉम्पस नीडल का, शुरू में मैंने बताया था कि नीडल के पास कभी भी कोई मैग्नेट आ जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। अब जैसे स्विच ऑन किया, ये तो मैग्नेट बन गया ना, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मतलब नीडल के पास एक मैग्नेट लाया गया, इसका मतलब नीडल के पास एक मैग्नेट लाया गया। जैसे ही हम नीडल के पास एक मैग्नेट हमने लाया तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो क्या आंसर लिखेंगे? द नीडल विल डिफ्लेक्ट। लेकिन कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा? देखो नीडल का ये नॉर्थ है और यहां पर नॉर्थ बना है, तो क्या नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। नीडल का ये पॉइंट नॉर्थ है, यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। यहां पर साउथ है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। यानी इस नीडल का टेल अट्रैक्टेड होगा इस फेस ए के तरफ और हेड रिपेल होगा। तो ऑब्वियसली नीडल कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, ये नीडल ऐसे नहीं, ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि हेड रिपेल हो गया, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर दिया, लेकिन टेल को अट्रैक्ट कर लिया, तो नीडल ऐसे घूम जाएगा। तो नीडल वेस्ट के तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो बी का आंसर क्या होगा? द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। इसका रीजन पूछा है, रीजन क्या लिखोगे? रीजन ये लिखोगे, द करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी अभी जो रीजन यहां लिखा था, करंट कैरिंग सोलिनॉइड क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। यहां रीजन है सबसे पहले स्लाइड में, ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, यही तो रीजन है। करंट कैरिंग, यहां वायर की जगह बना देना सोलिनॉइड। current carrying solenoid produced a magnetic field around it, and the magnetic needle of the compass experienced a torque in this magnetic field, so it deflects to align itself in the direction of magnetic field at that point। यही तो है आंसर कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, दिस इज द रीजन। समझ में आ गया भाई साहब रीजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagram in figure 10.19 shows a coil wound around a soft iron bar। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन में जाता हूं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो अभी अभी हमने किया, ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में था, बट एन एडिशनल क्वेश्चन वाज देयर। स्पेसिमेन पेपर में था, स्पेसिमेन पेपर ऑफ सेमेस्टर 2, पिछले साल का सेमेस्टर 2 का। उसमें क्या क्वेश्चन था? ये सारी चीजें लगभग सेम थी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स and without changing the current in the coil, how can you increase the magnetic strength of this solenoid, of this coil, of this electromagnet? कुछ भी बोलो, बिना कॉइल का नंबर को चेंज किए, बिना तुम ये किए कैसे तुम ये कर सकते हो? इसका स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हो बिना करंट इंक्रीज किए? तो ये हॉलो कार्डबोर्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा?
by placing a soft iron bar inside the hollow cardboard. तुम्हें कुछ नहीं करना, ये hollow cardboard निकालना नहीं है, इस hollow cardboard के अंदर, ये तो hollow है, एक soft iron का बार रख देना है, सॉफ्ट आयरन का रॉड रख देना है. दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ये आया था बोर्ड्स में. मैंने अभी भी बताया ना कि कई बार यहाँ पे पूछता है कि ये दोनों पॉइंट्स को नहीं लिखना है, क्या एक तीसरा तरीका है कि आप इंक्रीज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड. ये आ चुका है स्पेसिमेन पेपर में. तो आंसर होगा कि हम इस हॉलो कार्डबोर्ड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का बार, वी विल प्लेस अ सॉफ्ट आयरन बार इनसाइड द हॉलो कार्डबोर्ड. So it will increase the magnetic strength of this magnet. अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पर चलते हैं. The diagram in the figure 10.19 shows a coil wound around a soft iron bar XY. ठीक है, ये तो सॉफ्ट आयरन का ही कोर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. XY. State the polarity at ends X and Y as the switch is pressed on. तुम लोग बड़े आराम से कर दोगे, हलवा है. पोलैरिटी बताना है, तो करंट स्विच ऑन किया, करंट पॉजिटिव से निकला, मतलब ऊपर पीछे जाके नीचे, ऊपर 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 कर लो. अब क्या है, मेरे लिए वेट मत करो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. वाइंडिंग ऐसे ऐसे हो रहा है. एक्स से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, वाई से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है. यानी वही तो पूछा है, पोलैरिटी एट एक्स एंड वाई. तो एक्स पर क्या, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, वाई पर फिंगर्स को मूव करो वैसे ही जैसे करंट फ्लो कर रहा है, साउथ पोल. ये सब बोर्ड्स का क्वेश्चन है, सिंपल है ना, बन रहा है ना. क्लॉक रूल का यूज किया. कई बार पूछता है विच रूल डिड यू यूज टू अराइव एट योर आंसर. क्या लिखोगे, क्लॉक रूल. फिर बोलेगा स्टेट द रूल. स्टेट द रूल का मतलब ही है कि सिर्फ नाम नहीं लिखना रूल का. स्टेट मतलब यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द रूल. नेम द रूल, तब सिर्फ नाम लिखना. क्लॉक रूल. स्टेट द रूल तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्लॉक रूल, जो हमने अभी अभी पढ़ा है. ओके, suggest one way of increasing the strength of electromagnet formed. तो अभी हम दो तरीके पढ़ लिए हैं. One way is by increasing the number of turns in the windings of the coil. Second, by increasing the amount of current in this solenoid, in this coil. कोई भी way of increasing the strength of electromagnet तुम लिख सकते हो. करंट बढ़ा दो या फिर number of turns in the solenoid बढ़ा दो. You can write, we have just discussed. Okay, now this question is, in figure 10.20, you see what is there. It shows the current flowing in the coil of the wire wound around a soft iron horseshoe core. Soft iron का ही है. State the polarity developed at ends A and B. अभी भी हलवा है. तो करंट का डायरेक्शन बता दिया है, भले उसने बैटरी या सेल को शो नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियसली कनेक्टेड है. दैट हैव नॉट बीन शोन, दैट हैज नॉट बीन शोन. तो बी, अच्छा पहले तो अपनी फिंगर्स को घुमाओ जैसे करंट फ्लो कर रहा है. पहले किसी एक लेग को देखो, पहले बी को देखो. तो बी को देखो और अपने फिंगर को वैसे मूव करो जैसे करंट फ्लो कर रहा है. बी को देखो, पीछे से चढ़ा, सामने से गिरा. और फिर इधर से देखो, बी से देखो. मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज है ना. बी पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल बी पर डेवलप हुआ. ए को देखो, ए में अब फिंगर वैसे मूव करो जैसे करंट फ्लो कर रहा है. क्लॉकवाइज यानी ए पर साउथ पोल. लिख लोगे आंसर. द पोलैरिटी डेवलप्ड एट ए इज साउथ, द पोलैरिटी डेवलप्ड एट बी इज नॉर्थ. फुल मार्क्स. This question, the MCQ type, the presence of magnetic field at a point may be detected. कौन डिटेक्ट कर रहा है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है? ऑब्वियसली कॉम्पस नीडल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसके आसपास, तभी वो डिफ्लेक्ट हो रहा है. कैसे हमने पता किया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? किसका हेल्प लिया? कॉम्पस नीडल का. कॉम्पस नीडल जैसी डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब अरे भाई आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड है. प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ कॉम्पस नीडल. On reversing the direction of current in a wire, the magnetic field produced by it, simple, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, गेट्स रिवर्स्ड इन इट्स डायरेक्शन. इसी के साथ हमारा पार्ट ए इस चैप्टर का कंप्लीट होता है चिल्ड्रन. पार्ट बी और सी बाकी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. गॉड ब्लेस एवरीवन. स्टडी वेल.